میں تمہاری بات کو سمجھتا ہوں. چلے ملتے ہیں پھر بعد میں بات کریں گے. اچھا میری بات یاد رکھنا, میری طرف آتے وقت کسی کو بتانا, ٹھیک ہے؟ چلو ٹھیک ہے, بعد میں بات کرتا ہوں. لگتا ہے بارش کا ماحول بن رہا ہے, بجلی کافی چمک رہی ہے. چلو ٹھیک ہے, اوکے. حقانی حقانی, پتہ نہیں کہاں بیزی ہو جاتا ہے حقانی. جی عالم صاحب حکم مائی باپ. حقانی کہاں چلے گئے؟ وہ مائی باپ بات بڑے گاج واج رہے, میں نے تو سوچا تھا آپ سو گئے ہوں گے. ہیں کیا دیکھیے, میں نے 3-4 مرتبہ آپ کو آواز دی. مائی باپ عالم صاحب ہم تو نہیں. آپ کے کھانے میں جناب آپ حکم کریں کیا دیکھیں. حقانی میرے لیے ذرا کافی بنا دو. جیسا حکم مائی باپ. دیکھو یہ عالم صاحب بات سے پھر کافی بنائی کرتے. لو یہ عالم صاحب کافی تحریک جا رہے, پے موجہ مارو یہاں دیکھو. یہ جی عالم جی بابا جی. او واو حقانی, شکریہ. یہ آپ کی محبت ہے کیا؟ اور پیئے جی گاج واج کے یہاں دیجیے. تھینک یو حقانی. تاڈی پہ خیر ہو گیا. دیکھیں شرم کی بات ہے, یہ کرسمس کو وہ پیگنزم کے ساتھ جوڑنا. چلے پھر ملتے کل. اوکے حقانی, جی مائی باپ. ذرا لائٹ کو بند ہی رہنے دو تو اچھی بات ہے. میں عالم صاحب اکشا سے جی کے صاحب نیرے سے بیٹھا ہے. خیر ویسے ہی تھے, میں بتی پہ بال چھڑی سی جا, میں کام کر لا جی اتنے تھے بابا کھلارا پیا ہے, میں چک لا میں تیرا. حقانی میرا پاسپورٹ نہیں مل رہا, میں پریشان ہوں, اس لیے لائٹ بند کی. استاد تھا پاسپورٹ مائی باپ اتنے پہ میں انہیں پڑھا کرنا ہے آ کے. عجیب قسم کے آدمی چیزیں ادھر ادھر کرتے رہتے. گھبرایا جی ناش کھاتے ہوں دیا. کمال کے آدمی. یہ دیکھو جی مائی باپ, اے تاڈا پاسپورٹ جڑا نا مائی, اے ویکھیا جی اے تاڈا ہی پاسپورٹ ہے. واو کیا دے جی. حقانی بڑے کام کے آدمی ہو, میں 2 گھنٹے سے ڈھونڈ رہا ہوں, اس لیے پریشان تھا. اے ویکھیا جی تاڈی فوٹو یا. ہاں ہاں میری ہے, رکھ دو. تھینک یو, کہے نانا ہوئے اپریشیٹ اٹ. جی بھائی ان استاد سلامان ہے. اچھا حقانی, میں 2-3 دن کے لیے باہر جا رہا ہوں, ٹھیک ہے؟ اچھا جی, تو میں نے آپ کے لیے ایک گفٹ رکھا کرسمس کا, چیک بنا دیا. میں تینوں ایک گل دساں جی, میں کرسمس نہیں جی منادا. کیا عجیب قسم کی باتیں کر رہے ساڈے پاسٹر صاحب آندے نے پیگنزم آ. تم اور تمہارا پادری پاگل ہو چکے ہیں. دیکھو جی پاویں پاگل من تے بابا بڑے ہو چلے جی, میں نہیں جی منادا. اچھا چلو ٹھیک ہے, آپ جائیں. تے میرا گفٹ دے چھڈیا جی. کوئی گفٹ نہیں ہے, دماغ خراب کر دیا نا تم نے سارا. یہ میں جا کے اس پاسٹر نو پوچھنا بنوٹی میرا یاد مروا چھڈیا, تو آندا پیگنزم آ. چنگا جی باؤ جی. اوکے اوکے جاؤ. عجیب قسم کے پادری لوگوں کا دماغ خراب کرتے رہتے ہیں. ہاں بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, کل رات کافی زیادہ بارش تھی جس وجہ سے پائٹ صاحب نہیں آ سکے. پائٹ صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں آدھے گھنٹے تک آپ کی لوکیشن میں پہنچ جاؤں گا. چلو ٹھیک ہے, اپنا خیال رکھیں.
मैं समझता हूँ, शाम को मिलते हैं। That's right. Yes, Johnson, I will see you tomorrow. No, right now, sir, I just have some piece of work with my friend. Thank you. Merry Christmas, Alam. Oh wow, Pastor, wish you same. How are you? I'm fine. अच्छा किया कि आप कल रात नहीं आए, काफी ज्यादा बारिश थी। बड़ी खामोशी आज यहाँ पर, हकानी दिखाई नहीं दे रहा। लाजमी क्रिसमस की छुट्टियों पर गया होगा। जी। लेकिन वो क्रिसमस नहीं सेलिब्रेट करता। क्यों? वो कहता है, मेरे पादरी कहते हैं ये पैगनिज्म है। ऐसे पादरी जो हैं वो पादरी नहीं बल्कि फर्जंदे इब्लीस हैं। बल्कि सब फर्जंदाने इब्लीस जो क्रिसमस को पैगनिज्म से जोड़ते हैं। शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को। रेवरेंड, हकानी की बात ही नहीं, मैं चंद ऐसे लोगों को जानता हूं जो क्रिसमस सेलिब्रेट करने से बहुत ग्रेस करते हैं। यहां तक ऐसी ऐसी बात करते हैं, कहते हैं कि 25 दिसंबर मसीह यीशु की पैदाइश का दिन ही नहीं। हाँ, बहुत से लोग हैं ऐसे कहते हैं। देखिए आलम साहब, ये बातें बहुत गहरी हैं, आम आदमी के समझ से बाहर है जी। और खास करके जो शख्स खिर्द की रूह रखता है वही इन बातों को समझ सकता है। वाह। क्योंकि अगर आप खिर्द की रूह नहीं रखते जी, तो आप घोड़े और खच्चरों की मानद हैं। बिल्कुल। ना तो वो तारीख से वाकिफ हैं और ना ही उन तमाम कुतब से, बल्कि ये सब के सब फर्जंदाने इब्लीस हैं जो इस मुकद्दस महफिल की मुखालफत करते हैं और पैगनिज्म से जोड़ते हैं। ठीक है, 25 दिसंबर वो तारीख नहीं, लेकिन मुकर्रर तो की गई। जी ये कोई नजात की बात नहीं, जी। बल्कि मैं इस ताल्लुक से कहूंगा ये एक यादगार है। और यादगारी के ताल्लुक से मैं ये कह सकता हूं कि ये एक मुकद्दस महफिल है। वाह, मैं कुछ समझा नहीं। जैसा योएल नबी की मार्फत खुदा कहता है कि मुकद्दस महफिल फराहम करो। हाय हाय हाय। लेकिन 25 दिसंबर ही क्यों? बात 25 दिसंबर की या जनवरी की नहीं, जी। बल्कि तमाम अहले कलीसिया ने और तमाम बुजुर्गान दीन ने यह फैसला किया कि तमाम जो मसीही हैं इस दिन को इस तारीख पर मनाएं और साल हर साल इस मुकद्दस महफिल को मनाया जा रहा है। लेकिन इससे इब्लीस को कोई ठंड थोड़ी पड़ती है, इसीलिए तो उसने अपने फर्जंद खड़े किए हैं ताकि इस मुकद्दस महफिल की तौहीन करें और उसे पैगनिज्म से जोड़ें। वाह, इसका मतलब है कि दुनिया के तमाम जो मसीही हैं इस बात का इकरार करते हैं कि मसीह खुदाउन हमारी खातर हमारी निजात का बाप खोलने आया। बिल्कुल, बेशक। और सिवाय सईदना खुदावंद अल मसीह के कोई नजात का बाब नहीं खोल सकता। बहुत से लोग गलत तालीम फैला रहे हैं कि क्रिसमस ना ही मनाया जाए। बहुत से फर्जंदाने इब्लीस सोशल मीडिया पर इस बात का ढंढोरा पीट रहे हैं ताकि 25 दिसंबर ना मनाया जाए। और बहुत से नाम नहाद मसीही भी जो हैं उनके पैरो हो गए हैं। और ये बड़ी खतरनाक बात है, ऐसी गलत तालीम फैलाना बहुत ही खतरनाक है। इस बड़े दिन को मनाने के पीछे 19-20 सच्चाइयां हैं। वाह। और अगर इसी तरह इनकी मुखालफत की जाए तो उन सारी सच्चाइयों पर पर्दा पड़ जाता है, पानी फिर जाता है उन पर। समझे मेरी बात को? मैं आज वो सारी सच्चाइयां सुनना चाहता हूं तुमसे। ये सच्चाइयां अटल हैं। इब्लीस चाहे जितने मर्जी जतन कर ले, मुंह की खानी पड़ेगी उसे, मुंह की खानी पड़ेगी। लेकिन एक बात बताऊं तुम्हें? हाँ बताओ। कि इब्लीस शुरू से ही शर्मिंदा है और अल मसीह के नाम में हमेशा उसने शिकस्त खाई है। और ये सारे जो उसके फर्जंद बने फिरते हैं ना, ये भी शर्मिंदा हो जाएंगे। कीप इन योर माइंड। और अगर आप उन सच्चाइयों को जाने तो यकीन करें कि आप
इस बात से वाकिफ हो जाएंगे कि इस दिन को मनाना भी कितना जरूरी है और दूसरों को तलकीन करना कितना जरूरी है कि लेट्स सेलिब्रेट अ क्रिसमस डे। मैं फोन कर लूं, बाद में तुमसे बात करता हूं। अगर आप लूका की अंजील पढ़े तो उसमें खुदावंद मसीह ने किस तरह लोगों के सामने इकरार करने के बारे में कहा कि जो लोग उसका इस दुनिया में इकरार करते हैं उनके लिए क्या बरकत है। पूरी दुनिया मिलकर इस बात का इकरार करती है कि यीशु मसीह हमारे लिए इस दुनिया में आया और आदमियों के सामने उसका इकरार करना जरूरी है। यह महज 25 दिसंबर की ही बात नहीं, तो कोई भी दिन हो सकता है। बिल्कुल तुमने ठीक कहा। लेकिन जब आलमगीर कलीसिया और पूरी मसीही कौम ने इस बात का इरादा किया, ये इकरार का दिन है जब पूरी दुनिया यकजान होकर इस बात का इकरार करती है कि मसीह यीशु मेरे लिए आया। कुछ खाओगे तुम? नो थैंक यू। या पानी तो कुछ भी। मतलब मैंने आपके लिए बावे बनवाए ताकि आप जब खाएं पाए तो आपको मुगलपुरे की याद आए। बिल्कुल, ये बहुत अच्छा किया। आप कुछ बात कर रहे थे रेवरेंड जी। मेरा एक सवाल है आपसे। हाँ। फरिश्ते चरवाहों के पास ही क्यों गए? उनको तो हेरोदेस के पास जाना चाहिए था। बहुत अच्छा सवाल किया आपने, शुक्रिया। उन दिनों भेड़े गाभन थी आलम साहब, और शरीयत के मुताबिक ये लाजम था कि जो बर्रा खुदावंद के हजूर हैकल में लाया जाए वो बेऐब हो। बेऐब हो, राइट। सदियों से लोग इस शरीयत को पूरा कर रहे थे। अब चरवाहे रात को वहां पर जाग रहे थे कि अगर कोई भेड़ ने बच्चा दे दिया तो वो चल पड़ेगी, क्योंकि ये भेड़ की फितरत में शामिल है। जब वो बच्चा पैदा करती है तो वो चलना शुरू कर देती है। और वहां पर तो गौल था, क्योंकि अगर एक भेड़ दौड़ती है तो दूसरी भेड़े में हलचल मच जाती है, और अगर बच्चा नीचे गिरता है तो उसका कान पर से गुजर सकती है, उसकी आंख फूट सकती है, उसकी टांग टूट सकती है, तो वो बेऐब नहीं होगा। तो बेऐब बर्रा ढूंढना बहुत मुश्किल हुआ करता था। इस वजह से वो जागते रहते थे ताकि जब कोई भेड़ बच्चा पैदा करे उसे फौरी तौर पर उठाकर चरनी में रख दिया जाए और सरदार काहन के सामने पेश कर दिया जाए। सही। और सरदार काहन भी कुछ ज्यादा पैसे उन्हें दे देगा। तो इस वजह से वो जागते रहते थे। तो जब फरिश्ता ने उन्हें आकर यह पैगाम दिया, उनके लिए तो बड़ी खुशी की बात होगी। और उसने कहा कि तुम्हारे लिए यह खुशखबरी है कि अब तुम्हारी जान छूट गई। वाओ, दैट्स ऑसम। तुम्हारे लिए एक बेऐब बर्रा पैदा हो गया। हालेलुया। जिस तरह यूहन्ना कहता है, ये खुदा का बर्रा जो जहान के गुनाह उठा ले जाता है। सो मसीह यस्सु एक बेऐब बर्रा जो उनके लिए पैदा हो गया, ये उनके लिए बड़ी खुशखबरी थी। तो उन्होंने कहा अब आपको जागने की जरूरत नहीं है, अब आप लोगों को वेट करने की जरूरत नहीं है। तुम एक बच्चे को चरनी में पड़ा हुआ कपड़े में लिपटा हुआ पाओगे। तो उनकी जान छूट गई, जैसा आपकी और मेरी छूट चुकी है। प्रेज द लॉर्ड। अंजील मुकद्दस की रोशनी में हम देखते हैं रेवरेंड कि अल मसीह यरूशलेम में दाखिल हो रहा है और जम गफीर हजूम वहां पर शोर मचा रहा है। और फकीह फरीसी कहने लगे, ऐ उस्ताद इन्हें चुप करवा। हमें ये इल्म नहीं कि उन्होंने चुप रहने की तलकीन क्यों की। तुम्हारा मतलब है कि फरीसियों ने चुप रहने की तलकीन क्यों की? वो चुप रहने की तलकीन इसलिए कर रहे थे कि लोग वहां पर मौजूद थे और यरूशलेम में लोग इस बात के मुंतजिर थे कि कब सरदार काहन जो है वो इस बात का ऐलान करे कि ईद कब होगी, क्योंकि एक तरफ से काहन बर्रा लेकर यरूशलेम में दाखिल हो रहा है और दूसरी तरफ से यहोवा खुदा का बर्रा जो है वो यरूशलेम में दाखिल हो रहा है। तो इस वजह से वहां पर इतना शोर था, हलचल मच गई थी शहर में। तो इसलिए वो उनसे कह रहे थे कि इन्हें चुप करा ताकि लोगों में ऐलान हो सके कि बर्रा की कुर्बानी किस दिन होगी। सैयदना खुदावंद अल मसीह की जिंदगी पैदा होना और उसका मसलूब होना बिल्कुल बर्रा की तरह। रेवरेंड, यही वक्त क्यों चुना गया खुदाम यीशु मसीह के मुजस्सम होने का? बहुत अच्छा सवाल किया आपने। ये रोमियो का दौर था जब मसीह खुदावंद मुजस्सम हुआ, और रोमन दौर से पहले सिकंदर आजम का दौर था। वो सरजमीन हिंदुस्तान तक गया, इसीलिए यूनानी जबान मशरक, मगरब,
शमाल जुनूब तक फैल गई। जैसे आज अंग्रेजी जबान का राज है। बिल्कुल, ये दूसरा खाता खुल जाएगा, फिर किसी दिन इस पर बात करेंगे। जरूर। बारकैफ जब यूनानी जबान फैल गई तो आप यूं कह सकते हैं कि सड़क यूनानियों ने बना दी, उस पर पैगाम मसीहत रोमन लेकर दुनिया में निकल पड़े। तो यानी कि इसीलिए इनको रोमन कैथोलिक कहा जाता है। यानी रोम के पाक लोग, आलमगीर पाक या कलीसिया। बिल्कुल आपने ठीक कहा। रेवरेंड, तारीख को क्यों बदल दिया गया? इसके पीछे क्या वजह थी? यहूदियों को इस पर बड़ा रंज और गुस्सा था कि हमारे लोग अल मसीह के पैरो हो गए हैं। इसी सना पर उनको सख्त नफरत हो गई होगी। बिल्कुल तुम ठीक कह रहे हो। इसी सना पर उन्हें इस बात पर सख्त नफरत हो गई और इस बात को वो नाकाबिले बर्दाश्त बताते। मसीहत दिन रात लम्हा ब लम्हा बढ़ रही थी। रोमियों की हुकूमत थी, अब रोमी भी मसीही हो गए। वाह। मसीहों ने जज्बात में यह फैसला कर लिया कि हम यहूदियों से हर बात खत्म कर दें। यानी एक कैंपेन शुरू हो गई कि यहूदियों की ईदों के बरअक्स अलग ईदें रखी जाएं, जैसा मुर्दों की ईद और मुख्तलिफ दूसरी किस्म की ईदें। आप तो कुछ को आप जानते होंगे। यहाँ तक कि इब्रानी जबान को भी खैर बात कह दिया गया, खतने कराना बंद कर दिए गए। इसलिए नया अहदनामा यूनानी जबान में है। बिल्कुल आप ठीक समझे। हालांकि नया अहदनामा पहले इब्रानी जबान में लिखा गया था। इसी जज्बाती फैसला में रवायतें, किताबें, ईदें, बल्कि सारा सिस्टम ही अलग कर लिया गया। लेकिन क्यों? मसीही अल मसीह की मोहब्बत में बहुत ही जज्बाती थे। लिहाजा उन्होंने कहा कि जब ये सैयदना अल मसीह को नहीं मानते तो हमारा इनसे क्या वास्ता। रेवरेंड, यहूदी तारीख मर्दमशुमारी में आती थी ना? हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हो तुम। मकसद सिर्फ ये था कि हम इनसे अलग नजर आए। हालांकि ये तो जज्बात में अलग हुए, हकीकत में भी अल मसीह अलग करने ही आया। वो अहद को पूरा करने आया क्योंकि वो दुनिया से अपने लोगों को अलग करना चाहता है। इसलिए उसने रूहुल कुद्स को भेजा। इस गरज से इस बात को जानना और समझना अशद जरूरी है। मतलब बकरों छतरों की कुर्बानी खत्म हो गई? हाँ, मसीह के आने पर बकरों छतरों की कुर्बानी तो खत्म हुई, लेकिन हैकल में इकट्ठा होना भी बंद हो गया। खुदाम यसु मसीह ने कभी हैकल की तारीफ नहीं की, इसलिए ये चर्चेस बनाना कोई जरूरी नहीं। ये इमारतें बनाना नमरूद का और गैर अक़वाम का तरीकाकार है। मसीही तरीकाकार क्या है? लोगों को क्राइस्ट फॉलोअर बनाया जाए, ना कि चर्च फॉलोअर। फ्रेंड्स ऑफ क्राइस्ट टीम का भी तरीकेकार यही है कि लोगों को मसीह के पास लाया जाए। बहुत सारे लोग तारीख पर बहस करते हैं। ये पाखंडी जाहिल लोग हैं, कम इल्म, कुएं के मेंढक जो रवायात पर चल रहे हैं। इस तारीख को मानो, इसको ना मानो। रेवरेंड, कुछ लोग कहते हैं कि हमारा पुराने अहदनामे से कोई ताल्लुक नहीं। मेरी बात याद रखें, खुदा एक है, खुदा का मंसूबा एक है, खुदा का अहद एक है, खुदा का कलाम एक, खुदा का वादा एक है, खुदा का रूह एक है। इस बिना पर नजात का काम भी एक ही है। दौरे हाजिरा में बहुत सारे नाम नहाद पास्टर्स, बिशप साहबान ये दावा करते हैं कि हमारा पुराने अहदनामा से कोई ताल्लुक नहीं, लेकिन वो ये नहीं जानते कि पुराने अहदनामे और नए अहदनामे को सियासी मुफाद की बिना पर अलग किया गया। ये बात इन सहबान को समझ में क्यों नहीं आती? खुदावन से दूरी, कम इल्मी के सबब से लोग इसका प्रचार कर रहे हैं कि हम नया अहदनामा के लोग हैं। आप देखें कि पुराने अहदनामा के आगाज में ही अल मसीह दिखाई देता है कि यसु मसीह ही वो निजात दहिंदा है जिसका वादा बाग अदन में किया गया, अब्राहम के साथ किया गया, मूसा के साथ किया गया, 750 साल पहले यसाया नबी ने जिसकी पेशनगोइयां की, और जो आज अपने आप को आलामा या बिशप या डॉक्टर्स कहते हैं, अगर अब भी इस सच्चाई को ना समझें तो उनके लिए ये शर्म की बात है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। ये मौजू कंस्टेंटाइन की तरफ निकल जाएगा, इस पर फिर किसी दिन बात करेंगे। वाह, ये मेरा चैलेंज है उन तमाम मुबल्लिगीन को, नाम नहाद जो हैं और जो अपने आप को आलम कहते हैं, जो पुराने अहदनामे को और नए अहदनामे को अलग सूरतों में देखते हैं, जिन्होंने अपनी सोच में ही इसकी अलग शक्ल बना रखी है।
खुदा का कलाम ला तब्दील है, वो कभी तब्दील नहीं हो सकता। बेशक। ये मेरी बात याद रखिएगा। ये सुनी सुनाई बातों को लोगों तक पहुंचा देते हैं। और जिन्ना कोई गोरा गोरा ਲੱਭਦਾ जाके 4 ਪੈਸੇ ਦਿੰਦਾ, ਉਹੀ ਗੱਲਾਂ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਫੈਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਲੋਕ ਗਲਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਬੜਾ ਦਿਨ ਮਨਾਣਾ ਬੁਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ को 4 ਪੈਸੇ ਦੇ, ਉਹੀ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਹੱਲਿਆਂ 'ਚ ਫੈਲਾਣ ਲੱਗ। तो ये लोगों को गुमराह करते हैं। समझे मेरी बात को? मैं समझ गया। जैसा मैंने पहले भी आपको तारीख के हवाले से बयान किया जी कि ये तमाम फैसले मसीहों ने जज्बात में आकर किए, और ये तारीख की रोशनी में मैंने आपको बयान किया है। इसका मतलब कि हम अलग नहीं, ना हम अलग हैं, ना हम अलग रह सकते हैं। मैं कुछ बातें अभी आपको बयान नहीं कर सकता, फिर किसी दिन इस मौजू पर बात करेंगे। रेवरेंड, चंद लफ्जों में ही बयान करते हैं। मसीह ने बड़ी बातें जो बयान की हैं, हनूक की किताब की बताई हैं, आशर की किताब की बताई हैं, मिशना बुक ऑफ जुबली की बताई हैं। अगर मैं अलग बयान करूं तो जहालत के शहनशाह कहेंगे, फिर मसीह की अपनी तालीम कौन सी है। लेकिन वो अहमक ये नहीं जानते कि जो बातें मसीह यस्सू ने दोहराई, उसने साबित किया कि मैं ही था जो हनूक से बातें करता था। क्योंकि नबी नई नई बातें बताते हैं। सैयदना यस्सू अल मसीह तो खुद खुदा है। उसने बताया, मैं वही हूं जो मूसा से जलती झाड़ी में बात करता था। वाओ। मैं वही हूं जो सदक मिसह इब्न नजू के साथ जलती भट्टी में था। जब वो पानी पर चला तो दिखाया, मैं ही था जिसने मूसा को हुक्म दिया और समुद्र का पानी 2 टुकड़े हो गया। अगर सैयदना खुदावंद अल मसीह वहां जिस्मानी रूप में होता तो बनी इसराइल को पानी पर ही ले चलता। खुदावंद की तारीफ हो। वाह, क्या कहने। बेशक, क्योंकि यस्सू मसीह खुदावंदों का खुदा है। हम सिर्फ रेवरेंड, ये मजूसी कौन थे? ये भी बहुत अच्छा सवाल किया आपने। ये मजूसी कौन थे? हर मजहब, हर कबीला, हर उम्मत अपने तरीका से अल मसीह को सजदा करते हैं और उसका जिक्र करते हैं, क्योंकि मसीह के बगैर कोई मजहब, कोई कबीला, कोई तारीख मुकम्मल नहीं होती। हाय हाय हाय, क्या कहने। जैसा कि कबल अज मसीह और बाद अज मसीह, कुरान करीम में अल मसीह का 25 मरतबा जिक्र मिलता है। सूरह मरियम, सूरह अल इमरान, सूरह अल मायदा वगैरह, और 9 मरतबा भगवत गीता में इसका जिक्र आया है। 8 मरतबा गुरु ग्रंथ साहब में बाबा गुरु नानक ने मसीह का जिक्र किया। और मजूसियों की सूरत में हिंदू, अरबी, अरबस्तान से आए, जो हजरत इब्राहिम की औलाद यानी हाजरा के बच्चे और कतूरा के बच्चे थे, जो हजरत इब्राहिम की आखिरी बीवी थी। उनकी औलाद नजम का इल्म रखती थी। नजम का इल्म, जरा वजाहत करें। नजम का इल्म रखने वाले ही नजूमी कहलाते हैं, और वही इल्म रखने वाले नजूमी वही मजूसी हैं। क्या कहने। इस्तियारतन हम ये कह सकते हैं कि पूरी दुनिया ने अल मसीह को सजदा किया। वाओ, प्रेज द लॉर्ड। रेवरेंड, जाने से पहले एक बात बता दें कि क्रिसमस ट्री क्या है। ये सवाल मेरे दिल में बहुत दिनों से आ रहा था। ये वो दरख्त है जो गर्मी सर्दी में झड़ता ही नहीं। बड़ा यूनिक दरख्त है ये। बाज जाहिल नाम नहाद उलमा मुख्तलिफ दरख्तों के हवाले निकाल कर पैगनिज्म से इसे जोड़ते हैं। तो इसकी हकीकत क्या है? जब मकाबीनियों ने रोमियों को जंग में शिकस्त दी तो अपनी फतह का ऐलान के लिए उन्होंने सरू के दरख्तों को आग लगा दी। गालिबन ये जंग पहाड़ों पर ही हो रही थी। बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया आलम। शुक्रिया। अब बनी इसराइल को बाखबर करने के लिए कि हम जंग में जीत चुके, सरू के दरख्तों को आग लगाकर रोशन किया गया। सरू के दरख्त को तो आग भी बहुत जल्द लगती है। जी, क्योंकि उसमें ब्रोजा होता है, बड़ी रोशनी होती है। किसी दौर में जंग की जीत का ऐलान लोगों के घरों को आग लगाकर किया जाता था। वाह, मकाबीन तो बहुत बड़े कायन थे। इसीलिए तो उन्होंने लोगों के घरों को आग नहीं लगाई, बल्कि पहाड़ों पर लगे सरू के दरख्तों को उन्होंने आग लगाकर रोशन कर दिया और इसराइल को इंतबाह किया कि हम ये जंग जीत चुके हैं। समझे मेरी बात को? मैं समझ गया। और आज ये वही दरख्त है जो रोशन करके बताया जाता है कि हमने फतह पाली अल मसीह के नाम में।
आग लगाने की बजाय हम उसे सजाते हैं, डेकोरेट करते हैं। और सॉरी यार, आज ये वही दरख्त है जो रोशन करके बताया जाता है कि हमने अल-मसीह के नाम में फतह पाई। आग लगाने की बजाय उसे खूबसूरत और डिफरेंट से रोशनियों से सजाया जाता है, लैंटिंग जलाई जाती है और हम इस बात का ऐलान करते हैं कि हमने फतह पाई अल-मसीह के नाम में। द रेवरेंड चंद्र उस वेले में सोशल मीडिया इस्तेमाल कर रहा था, जी, तो अजीब किस्म की सेंटा क्लॉज के बारे में वीडियो देखने के लिए मिली। वाह। और कुछ लोग तो सेंटा क्लॉज को, आप तो जानते हैं कि ये किस किस्म के लोग हैं, कुछ भी बोल देते हैं। बिल्कुल। तो मैं चाहता हूं कि आपने इतना कुछ बताया, हिस्ट्री बयान की, तो मैं क्रिसमस के हवाला से हमारे व्यूअर्स को बताया जाए कि सेंटा क्लॉज क्या था। सेंटा क्लॉज एक बहुत अच्छा इंसान था, लेकिन मैं हैरान हुए ऐसे लोगों से। वो पन्नी बेचदा सी, चरस वंडदा है, शराब दी बोतलां वंडदा फिरदा है। क्यों मुखालफत करते हैं लोग ऐसे, यानी कि अच्छे इंसान। वैसे बड़े मजे की बात बताई आपने कि वो जुर्म तो करता नहीं, गिफ्ट ही देता है। सत्या गए ऐसे लोग, पागल हो चुके हैं। उनको खुद अपने आप का नहीं पता कि वह कौन है, बेवकूफ हैं ऐसे लोग। देखें, सेंट न्यूक्लियस की कोई औलाद नहीं थी, उसके दिल में बच्चों का बहुत एहसास था। वो क्रिसमस के मौका पर भेस बदल के बच्चों को गिफ्ट तकसीम किया करता था, बड़ी उसे खुशी होती थी। जो गिफ्ट देते हैं दिल के बड़े अमीर होते हैं, लेकिन बहुत से लोग क्रिसमस बाबा के खिलाफ ना जाने क्यों बकवास करते हैं। कमाल है आलम साहब, इस बात को तो समझें। लोग इसलिए खिलाफ हैं कि वो खुद धोखेबाज हैं, इसलिए उसके खिलाफ बोलते हैं। मजूसियों ने तोहफा दिया, गडरियों ने तोहफा दिया, लेकिन क्रिसमस बाबा उनका फोड़ा बन गया है। ताड़ा बेड़ा तर जाए, ओयो चरस वंडदा है, अच्छा काम कर रहा है। तानू नजायज गाश पैंदे ने, ये सब ढोंगी हैं, ढोंगी हैं। तो ये हर अजीब किस्म की बातें हैं। ये क्रिसमस ट्री क्या है, ये बाबा क्रिसमस क्या है, फलां है, ये वो तारीख नहीं, ये बेहुदा किस्म की बातें हैं। ना कोई इल्म, ना कोई बात, कोई वैसे ही दूसरों का दिमाग खराब करने के लिए। बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि जो ईदें तुमने मुकर्रर की उन्हें मनाओ, अगर तू नहीं मनाएगा तो ये भी गुनाह होगा। तो ये तो एक मुकद्दस महफिल है और रूए जमीन पर हर इंसान इसका इकरार कर रहा है कि यीशु मसीह इस दुनिया में पैदा हुआ, मुजस्सम हुआ। हालेलुया। तो हमें इस बात पर फख्र करना चाहिए कि हम इस दिन को मनाते हैं, उस मुकद्दस महफिल में इकट्ठे होते हैं। प्रेज द लॉर्ड। अब आप किसी के झांसे में ना आ जाइएगा। मैं कभी नहीं आता। मैं एक बात और ये बहुत बड़ा गुनाह होगा। वो शख्स फर्जंदे इबलीस है जो क्रिसमस की खुशियों पर धब्बा लगाने की कोशिश करता है। ये और खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे एंड विश यू वेरी मैरी क्रिसमस। आपको एक बात बताऊं, जी, नया साल सारी दुनिया मनाती है। आप यकीन करेंगे कि अगर किसी भी मजहब का कोई आदमी बैंक में चला जाए और अपने ही मजहब की तारीख लिख दे, उस तारीख को कोई नहीं मानेगा। ऐसा ही आपको उस चेक पर, उस डॉक्यूमेंट्स, दस्तावेजात पर 2021 लिखना होगा। और 2021 लिखते वक्त आप चाहे ना दोहराएं, लेकिन आप अंदर से गवाही दे रहे होते हैं कि 2021 बरस हो गए, पूरी दुनिया का नजात दहिंदा इस दुनिया में आया और उसका नाम सैयदना यीशु अल मसीह नासरी। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। ठीक है, कल मिलते हैं। खुदा अल मसीह नासरी आपको बड़ी बरकत दे। खुद भी क्रिसमस सेलिब्रेट करें और दूसरों को भी बताएं। खुदा आपको बड़ी बरकत दे। आपका